ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام خاتون بیگم تھا۔ خاتون بیگم کا دل بہت نیک تھا، لیکن گاؤں کے لوگ ہمیشہ ان سے ناپسندیدہ سلوک کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا طرز زندگی باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ خاتون بیگم کا ایک انوکھا شوق تھا، وہ گھوڑوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن خاتون بیگم نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھوڑوں سے شادی کرے گی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ بات انتہائی عجیب و غریب تھی۔ وہ ہمیشہ اس پر ہنستے اور اس کا مذاق الفاڑتی، مگر خاتون بیگم نے کبھی بھی ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنی باتوں سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے، مگر خاتون بیگم نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت بنائے گی۔ اس نے دونوں گھوڑوں کو تیار کیا اور ایک خوبصورت تقریب منعقد کی۔ گاؤں والے اس دن کی تیاری دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ خاتون بیگم کیا کر رہی ہے۔ شادی کی تقریب کے دن خاتون بیگم نے اپنے گھوڑوں کو سنبھال کر ایک بلند آواز میں کہا، یہ صرف میری محبت کی کہانی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔ گاؤں کے لوگ اس واقعہ کو دیکھ کر اور بھی زیادہ چپ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو غصے میں آ کر گاؤں کے بزرگوں سے بات کرنے گئے، لیکن کچھ نے اسے صرف ایک عجیب سی کہانی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مگر اس دن کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ گاؤں میں خاتون بیگم کی شادی کے بعد عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دونوں گھوڑے جو خاتون بیگم کے ساتھ تھے ہر روز زیادہ طاقتور اور خوبصورت ہوتے جا رہے تھے۔ ان گھوڑوں کے جسم میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی اور ان کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی۔ خاتون بیگم کا گھر بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشحال ہو گیا تھا۔ اس کے گھر کے باغات میں رنگ برنگے پھول کھلنے لگے اور درختوں پر زیادہ پھل لگنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ سب دیکھ کر سوچنا شروع کیا کہ آخر خاتون بیگم کے ساتھ کیا خاص بات ہے جو اس کے گھوڑے اور زندگی اتنی بدل گئی ہے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے خاتون بیگم کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہت تھے کہ کسی طرح خاتون بیگم سے اس کے راز کا پتہ لگائیں۔ جب وہ خاتون بیگم کے گھر پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ دونوں گھوڑے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے خوبصورت پھولوں اور درختوں کے بیچ میں کھڑے تھے اور خاتون بیگم ان کے درمیان کھڑی تھی جیسے وہ گھوڑوں سے بات کر رہی ہو۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ لیکن ایک نوجوان جس کا نام زاہد تھا نے سوچا کہ شاید اس موقع پر خاتون بیگم سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ زاہد نے آگے بڑھ کر خاتون بیگم سے کہا، خاتون بیگم، آپ نے جو یہ سب کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا۔ خاتون بیگم مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ صرف محبت کا نتیجہ ہے اور محبت میں طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں۔ زاہد نے کنفیوز ہو کر پوچھا، کیا آپ ہمیں وہ اصول بتا سکتی ہے؟ خاتون بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم یہ راز جاننا چاہتے ہو تو تمہیں گاؤں کے سب سے پرانے درخت تک جانا ہوگا جہاں میں نے اپنے گھوڑوں سے وعدہ کیا تھا۔ وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہیں جاننا چاہیے۔ گاؤں کے لوگ اس بات کو سن کر مزید متجسس ہو گئے اور سوچنے لگے کہ وہ درخت کہاں ہوگا اور وہاں کیا راز چھپے ہوں گے۔ کچھ نے زاہد کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسروں نے اس خطرناک راستے پر قدم رکھنے سے گریز کیا۔ زاہد اور گاؤں کے کچھ دوسرے نوجوانوں نے خاتون بیگم کے بتائے ہوئے درخت تک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ درخت گاؤں کے باہر ایک چھوٹے سے جنگل میں واقع تھا جہاں زیادہ تر لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ جنگل رات کے وقت گاؤں والوں کے لیے خاصا پراسرار اور خوفناک لگتا تھا، لیکن زاہد کی دلچسپی اور جستجو اسے مزید آگے ہی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی مدھم ہو چکی تھی، زاہد نے اپنی دوست فاطمہ کو ساتھ لیا اور دونوں درخت کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں کے لوگ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا، یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، ان کا کیا کام ہے وہاں؟ لیکن زاہد اور فاطمہ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ درختوں کی سرسراہٹ بھی مدھم ہو گئی تھی، جیسے سب کچھ ان دونوں کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بہت بڑی اور پراسرار درخت کے سامنے پہنچے جو باقی درختوں سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری تھیں کہ وہ جیسے زمین سے جڑ کر ایک روح کی طرح زندہ ہو۔ زاہد نے دھیرے سے کہا، یہ وہی درخت ہے جس کی بات خاتون بیگم نے کی تھی۔ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن اس درخت میں ایسا کیا ہے؟ زاہد نے جواب دیا، شاید اس درخت میں وہ راز چھپے ہوں جو خاتون بیگم نے بتایا تھا۔ انہوں نے درخت کے قریب جا کر اس کی جڑوں کو دیکھا اور وہاں ایک پرانا کتبہ لگا ہوا تھا جس پر کچھ قدیم نشان تھے۔
जाहिद ने वो कतबा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही इसने आखिरी लफ्ज पढ़ा एक अजीब सी रोशनी दरख्त से निकलकर उन दोनों के गिर्द घूमने लगी। फातिमा ने खौफ से कहा, क्या ये कुछ गलत हो रहा है? जाहिद ने परेशानी के बावजूद कहा, नहीं, ये तो एक इशारा हो सकता है, हमें इस रोशनी के पीछे जाना चाहिए। ये रोशनी उन्हें एक कदीम गार तक ले गई। गार के अंदर एक रोशन पत्थर था जिस पर खातून बेगम का निशान कंदा था। जाहिद ने पत्थर को छुआ और अचानक गार की दीवारों से आवाजें आना शुरू हो गईं। ये वो राज हैं जो तुम दोनों के लिए छुपे हैं। एक आवाज गूंज उठी। फातिमा ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जाहिद ने पत्थर को दोबारा छुआ और कहा, ये वो राज हैं जो खातून बेगम ने हमें सिखाने के लिए छुपाए हैं। हमें उनकी तलाश मुकम्मल करनी होगी। गार में एक और दरख्त भी था जिसके नीचे कुछ और था जो उनका इंतजार कर रहा था। जाहिद और फातिमा ने इस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। वो दोनों गार के अंदर मजीद गहराई में जा रहे थे और जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचे एक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। ये दरवाजा किसी जमाने में छुपे हुए राज को जाहिर करने के लिए बनाया गया था और उसका खिलना एक अहम इशारा था। दरवाजा खुलते ही एक और कमरा नजर आया जिसकी दीवारों पर कदीम तस्वीरें और नक्शे थे। इन तस्वीरों में एक बूढ़ी औरत यानी खातून बेगम और दो घोड़े दिखाए गए थे। उनके दरमियान एक रोशन खत था जो इन तस्वीर के नीचे कंदा था। जाहिद ने इन तस्वीरों को गौर से देखा और फिर कहा, ये तस्वीरें खातून बेगम की कहानी बता रही है, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ और भी है। फातिमा ने कहा, ये क्या निशान है? क्या ये किसी राज का हिस्सा है? जाहिद ने खत को पढ़ा और कहा, ये लिखा है, सिर्फ वही शख्स जो सच्चाई को समझने की जस्तजू करेगा इस दरख्त की ताकत को हासिल करेगा। वो ताकत इंसान की नहीं बल्कि कुदरत की ताकत है। दोनों इस इबारत को पढ़कर मजीद मुतजस्सिस हो गए। उन्हें समझ आ रहा था कि खातून बेगम का ये अमल सिर्फ एक ख्याली शादी नहीं थी बल्कि इसका ताल्लुक एक कदीम ताकत से था जिसको आजाद किया जा रहा था। जाहिद ने मजीद कहा, ये दरख्त और ये ताकत हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद खातून बेगम ने यह सब इसलिए किया ताकि वो गांव वालों को इस कुदरती ताकत का सही इस्तेमाल सिखा सके। फातिमा ने कहा, यह मुमकिन नहीं, मगर अगर ये सच है तो हमें इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। इसी वक्त एक और रोशनी गार में फैलने लगी और एक पुराना दरख्त उनके सामने आ गया जिसके नीचे एक अजीब सी कुदरती तवानाई की लहरें फैल रही थी। जाहिद और फातिमा दोनों इस दरख्त के करीब गए और उन तवानाइयों का सामना किया। जैसे ही जाहिद ने दरख्त को छुआ वो तवानाइयां जिस्म में सरायत कर गईं और उसके अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। लेकिन इस ताकत के साथ एक सवाल भी था, क्या वो इस तवानाई को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? और गांव के लोग जो हमेशा खातून बेगम का मजाक अलिफाड़ती थे, अब उनका क्या रद्दे अमल होगा? हमें इस राज को गांव वालों तक पहुंचाना होगा, वो जाहिद ने कहा, मगर उसके लिए हमें बहुत मोहतात रहना होगा क्योंकि इस ताकत का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फातिमा ने कहा, लेकिन क्या गांव वाले इस बात को समझ पाएंगे? फिर वो हमें और खातून बेगम को मजीद नजरअंदाज कर देंगे? ये सवाल अभी बाकी था और जवाब के लिए इन दोनों को अपने अंदर और बाहर की दुनिया का सामना करना था। जाहिद और फातिमा दोनों गार से बाहर निकलने के लिए वापस पलट गए, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा बोझ था। इन दोनों को समझ आ रहा था कि जो ताकत उन्होंने हासिल की है वो बहुत बड़ी और नाजुक चीज है। गांव में वापस जाने का फैसला करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोग इसे खौफ आशक की नजर से देखेंगे। गांव पहुंचने के बाद जाहिद और फातिमा ने एक रात गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर ये फैसला किया कि इस ताकत का राज गांव वालों के सामने लाना जरूरी है ताकि वो इसे दुरुस्त तरीके से समझ सकें। मगर वो जानते थे कि इस बात को गांव के लोगों के साथ शेयर करना इतना सादा नहीं होगा। अगले दिन गांव के सब लोग एक मैदान में जमा हुए और जाहिद और फातिमा ने इस अनोखी कुव्वत के बारे में बताया। शुरू में लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए बल्कि उन्हें मजाक समझा। ये सब कुछ झूठ है, गांव के कुछ लोग चलाए, ये कोई जादूगरी नहीं है, ये बस वहम है। लेकिन जैसे ही जाहिद ने एक बार फिर दरख्त को छूकर वो तवानाई महसूस की, कुछ अजीब वाकया हुआ। गांव के बीच में एक दरख्त के नीचे अचानक सब्ज रोशनी फैलने लगी और जमीन से कुदरती तवानाइयां अलिफाटे कर गांव के हर गोशे में फैलने लगे। गांव वाले हैरान होकर ये मंजर देखने लगे और उनके दिलों में एक नई उम्मीद पैदा होने लगी। अब लोग समझ गए कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। जाहिद और फातिमा ने उन्हें बताया कि ये तवानाई कुदरत की तरफ से एक तोहफा है और उसका सही इस्तेमाल लोगों की फलाह और गांव की तरक्की के लिए किया जा सकता है। खातून बेगम की ग़ियाब में ये ताकत अब गांव वालों के लिए एक नया आगाज बन चुकी थी, लेकिन साथ ही उनके दिलों में एक सवाल था, क्या इस ताकत को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? गांव के लोगों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए थे कि इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। चंद दिन बाद खातून बेगम गांव वापस आ गईं। वो जानती थीं कि गांव वालों ने उनके राज को समझा है
और अब वक्त आ चुका था कि वो उनकी रहनुमाई करें। खातून बेगम ने लोगों को बताया, ये ताकत तुम्हारी नहीं है, ये सिर्फ कुदरत की है। तुम्हें इसका इस्तेमाल इंसानियत की भला के लिए करना है, न कि अपनी ख्वाहिशात के लिए। मगर कुछ लोगों ने इस बात पर एतराज किया और उनका ख्याल था कि ये ताकत सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गांव में मजीद कशीदगी बढ़ने लगी। खातून बेगम ने कहा, तुम्हें इस ताकत के साथ मोहब्बत, सब्र और दानिशमंदी के साथ पेश आना होगा, वरना ये तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगी। इसी दौरान एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबकी सोच को बदल दिया। गांव में कशीदगी बढ़ रही थी और लोग मुख्तलिफ राय रखते थे कि इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि इस तवानाई को गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि कुछ इस ताकत को अपने ज़ाती फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खातून बेगम ने इन सब को एक मर्तबा फिर याद दिलाया कि ये तवानाई सिर्फ कुदरत का तोहफा है और उसका इस्तेमाल इंसानों की फलाह और एक दूसरे की मदद के लिए होना चाहिए। एक रात गांव के तमाम लोग मैदान में जमा हुए थे और खातून बेगम ने उनसे कहा, ये ताकत तुम्हारे हाथों में है, लेकिन इसका राज तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है। अगर तुम इस ताकत का सही इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें अजमत देगी, मगर अगर तुमने इस ताकत को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें तबाह कर देगी। गांव में इस वक्त एक पुरअसरार कैफियत छा गई। हर किसी के दिल में एक नया सवाल था, हमें इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसी दौरान एक नया वाकया पेश आया जिसने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। गांव के एक तरफ जहां लोग इस ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक जमीन लरजने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे गांव के लोग दहशत के आलम में दौड़ने लगे। ये धमाका इस तवानाई के गैर जिम्मेदार इस्तेमाल का नतीजा था। खातून बेगम फौरन मैदान में आईं और बुलंद आवाज में कहा, ये वही नतीजा है जब हम कुदरती ताकत को अपनी हवस और लालच के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब भी वक्त है इस ताकत को दोबारा सही रास्ते पर लाने का। सब लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे और खातून बेगम ने अपनी बात जारी रखी, ये कुदरत का राज तुम्हें अजमत देने आया है, लेकिन इसका ज़िया तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। इसी लम्हे खातून बेगम ने एक पुराना कतबा निकाला जो उसने गार में पाया था। इस कतबे में लिखा था, जब तुम सब मिलकर इस तवानाई को मोहब्बत और हम आहंगी के साथ इस्तेमाल करोगे, तब ये तुम्हें न सिर्फ कुदरत की ताकत देगी बल्कि तुम्हारी रूहों में एक नई रोशनी पैदा करेगी। ये कतबा पढ़कर गांव वालों को समझ आ गया कि वो इस तवानाई का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आपस में ताउन की यकीन दहानी की और एक नई जिंदगी के आगाज के लिए काम करना शुरू किया। गांव के लोग अब इस तवानाई को अपने खेतों की जमीन को बेहतर बनाने, पानी के वसाइल को बचाने और एक दूसरे की मदद करने में इस्तेमाल करने लगे। और इसी दौरान खातून बेगम का एक राज खुला। इसने ये सब कुछ इसलिए किया था कि लोगों को कुदरत की ताकत का सही इस्तेमाल सिखाया जा सके, ताकि वो हमेशा अपने आप से बड़ी बात। आखिरकार गांव में अमन व सुकून वापस आ गया और इस तवानाई का इस्तेमाल एक नया दौर शुरू करने का सबब बन गया। खातून बेगम की कुर्बानियां और उसका नेक अमल गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहा और इस तरह खातून बेगम की कहानी एक ताकतवर दर्स छोड़ते हुए खत्म हुई। वो दर्स ये था कि कुदरत की ताकत सिर्फ उसके सही इस्तेमाल से ही इंसानों की जिंदगी में रोशनी ला सकती है, और जब ये ताकत मोहब्बत, अक्ल और सब्र के साथ इस्तेमाल की जाए तो दुनिया में कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। ये कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में जिंदा रही और खातून बेगम का नाम एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखा गया।